हाय गाइस, आई एम हर्षिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को कंप्लीट कर लेते हैं। आई गेस दिस इज द सिक्स्थ वीडियो ऑफ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड फाइनली ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। आज का टॉपिक इज योर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सो सेम करेंगे, पहले एनसीईआरटी रीड, उसके बाद क्वेश्चंस साइड में जो भी उसके लिखे हुए हैं। आओ एक बार देख लेते हैं इसको। ओके, सो if I show you this, see, यहाँ से करना है आज हमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से, ठीक है। तो इसे एक बार इरेज कर देते हैं। काफी आसान टॉपिक है आज का। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में भी ज्यादा कुछ नहीं है एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी काफी आसान है, ठीक है। हम्म चलो, लेट्स स्टार्ट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इन द preceding section you have learned that the sequence of bases in DNA that determines the genetic information of given organism. In other words, genetic makeup of an organism or an individual lies in what? Lies in DNA. Your all the genetic information lies in DNA. Okay. If two individuals differ and their DNA sequence should also be different. अगर दो लोग अलग अलग है, like एक person हम ले लेते हैं, एक A and दूसरा ले लेते हैं B, अगर ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, इसका मतलब क्या होगा? इन दोनों का डीएनए भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। Okay. These assumptions led to a quest of finding out complete DNA sequence. अब क्या हुआ कि अब एक जरूरत महसूस हुई लोगों को क्या करने की, एक पूरे डीएनए को सीक्वेंस को निकालने की ऑफ ह्यूमन जीनोम। ओके, with the establishment of genetic engineering techniques where it is possible to isolate and clone any piece of DNA, availability of simple and fast techniques for determining of DNA sequence. A very ambitious project sequencing of human genome was launched in which year? In year 1990 and named as Human Genome Project HGP. Okay, this was a mega project. You can imagine the magnitude and the requirement for the project if we simply define the aim of the project as follows. अब see, if you remember कि डीएनए कितना बड़ा है, उसको कैसे करते हैं? कॉइल अप करके स्टोर किया जाता है ना। सी, ह्यूमन जीनोम इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच? 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर का है। अब अगर एक बेस पेयर को कोड करने की कॉस्ट है $3, तो यू कैन इमेजिन 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर को सीक्वेंस करने की कितनी अमाउंट होगी। ओके, if the cost of sequencing was $3 per base pair estimated cost beginning, the total cost estimated for the project, it would approximately be कितनी? 9 billion US dollar. Okay. Further, it if obtained sequence was stored in a book. अब सी, किसी चीज में स्टोर भी करना पड़ेगा इसको। तो क्या लिखा है कि अगर एक बुक में स्टोर करना होगा, तो एक बुक जिसके 1000 पेजेस है एंड हर पेज पे
राइट 1000 पेजेस एंड ऐसी 3300 बुक्स लगेंगी. ओके. सो यू कैन इमेजिन कितना बड़ा प्रोजेक्ट था ये. ठीक है. अब इसके लिए द enormous amount of data expected to be generated among necessitated use high speed computers machines are used for storing of data analysis. HGPs are closely associated with the rapid development of new area of biology known as bioinformatics. ठीक है. चलो. इफ अब आते हैं गोल्स ऑफ HGP. अब गोल्स क्या थे इसके? फर्स्ट वॉज क्या? फर्स्ट जो था कि आइडेंटिफाइंग अप्रोक्सीमेटली 20,000 to 25,000 genes in human DNA. कितने? 20,000 to 25,000 genes, determining the sequence of 3 billion chemical base pairs. 3 billion chemical base pairs of human DNA, storing them in the databases, uh, improve tools for data analysis, transferring of technologies for sectors such as industries, address the ethical, legal, and social issue ELSI that may arise from the project. The Human Genome Project was how many year project? A 13-year project coordinated by US Department of Energies and National Institute of Health. During the early years of HGP, the Wellcome Trust UK became a major partner. Additional contribution came from Japan, France, Germany. ये सब याद करने की जरूरत नहीं है. अब एक चीज जो ये याद रखते हैं, ये प्रोजेक्ट कब से कब तक हुआ था? This project continued from 1990 to 2020, 2003. How many year project? It was a 13-year project, or you can say a mega project. Now, अब एक चीज और कि ओके. अब एक चीज जो बहुत इम्पोर्टेंट थी, जिससे क्या किया इस प्रोजेक्ट ने, किस चीज में हेल्प करी? डायग्नोस, ट्रीट द डिसऑर्डर्स दैट आर. क्या? कौन से डिसऑर्डर्स? जेनेटिक डिसऑर्डर्स. उनको एड्रेस किया एंड ट्रीट करने में हेल्प करी. ओके. Besides providing clues of understanding human biology, learning about non-human organism DNA sequence can lead to understanding of their natural capabilities that can be applied towards solving challenges of healthcare. हेल्थ केयर में आ गया आपका. हेल्थ केयर का ही पार्ट है ना एक ये. एग्रीकल्चर एंड एनर्जी प्रोडक्शन. ठीक है. Environmental remediation. Many non-human modes organisms such as bacteria and yeast and some nematodes. ठीक है. ड्रोसोफिलिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अब आ गया आपका एक ये methodologies. The methods involve two major approaches. One approach focused on identifying all the genes. First approach हो गया identify करने हैं all genes को, that expressed as RNA. और क्या नाम दे दिया है इनको? Expressed sequence tags, ESTs. Another book that bind a approach of simply sequencing of whole set of genome containing of coding and non-coding sequences. Later assigning different region in the sequence with functions. अब ये सब छोड़ दो. For sequencing of total DNA of cell isolated and converted into random. अब क्या किया? पूरे डीएनए को लिया, उसको आइसोलेट किया, देन उसको कन्वर्ट कर दिया रैंडम रैंडम फ्रैगमेंट्स में. सम वर स्मॉलर. रिकॉल डीएनए तो बहुत लंबा पॉलीमर है ना, तो उसको छोटे 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 स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में वो कर दिया. ठीक है.
टेक्निकल लिमिटेशंस इन सीक्वेंसिंग ऑफ लॉन्ग पेयर, अब टेक्निकल लिमिटेशंस आ रही है लॉन्ग पेयर करने के लिए. Then they are cloned and cloned in suitable hosts using a specialized vectors. The cloning result into amplification of each piece of DNA that so is subsequently could be sequenced with ease. The commonly used host वो bacteria and yeast. अब आ गया आपका एक ये BAC bacterial artificial chromosome and YAC yeast artificial chromosome. These two इन दोनों के नाम एंड इनकी डेफिनेशन आप याद रखेंगे फुल फॉर्म्स. सो ये समझ में आ गया पूरा. दूसरे पैराग्राफ पे चले. द फ्रेगमेंट्स वर सीक्वेंस यूजिंग ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंस. अब कैसे वो सीक्वेंस करें ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंस में, वो आपके सीक्वेंस है. The fragments are sequenced by automated DNA sequence that worked by the principle of method developed by Frederick Sanger. Remember, Sanger is also credited for developing methods of determination of amino acid sequence in proteins. दो काम आपको फ्रेडरिक सैंगर के याद रखने हैं. One is your amino acid and another is DNA sequence. ठीक है. These sequences were arranged on the base of overlapping regions present in them. This required generation of overlapping fragments for sequencing. Alignment of these sequences was humanly not possible. अब humanly not possible था, तो what they used were computer-based programs were used. These sequences are subsequently annotated with were assigned to each chromosomes. The sequence of chromosome 1, अब आ गया important चीज क्रोमोसोम 1 कब कंप्लीट हुआ था? मई 2006. This was the last 24 human chromosome, and then 22 autosomes and 16 chromosome, 23, 23, 46. ये तो आपको मैंने लास्ट उसमें बता दिया है चैप्टर में. Now, another challenging task was assigning the genetic and physical map of genome. अब क्या genetic and physical map को भी हमें वो करना है. That was the another challenging task. This was generated using information and polymorphism of restriction endonuclease recognition sites and some repetitive DNA sequence known as microsatellites of polymorphism in repetitive डीएनए सीक्वेंस शैल बी एक्सप्लेन्ड इन द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. ये हम आपको नेक्स्ट सेक्शन में बताएंगे. अब आ जाओ आप इसके सेलियंट फीचर्स पे. अब भैया सेलियंट फीचर्स आर इम्पोर्टेंट एंड सेलियंट फीचर में मैं थोड़ी चीजें बताऊंगी, लेकिन वो अच्छे से याद रखनी है. उसको आप भूलने का रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि क्वेश्चन आता है यहाँ से. वो तो सब बस आपके इंफॉर्मेशन हो गई. अब आ गया आपका क्वेश्चंस एंड पीवाईक्यूज आएंगे यहाँ से. द सेलियंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम. ठीक है. फर्स्ट आ गया कितने बेस पेयर्स होते हैं. ह्यूमन जीनोम कंटेन 3164.7 मिलियन बेस पेयर्स. इसको एज इट इज याद करना है. ठीक है. द एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 bases but the size varies greatly from individual. अब आया आपका नेक्स्ट थिंग जो आपको याद रखनी है. दैट इज द largest known human gene, that is dystrophin, at 2.4 million base pairs. A total number of genes estimated at 30,000, much lower than the previous estimated. ये सब छोड़ दो आप. अब देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज, ये लाइन. अगर आप कंपेयर करोगे ना तो 99.9% न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं ना, बेस nucleotide bases are exactly same. What? Exactly same. But your 0.1% न्यूक्लियोटाइड जो होता है
that makes the difference. एक से- hold on. Yeah, that makes the difference. This 0.1% is responsible for your the difference in face and etc. एक second sir. Hello. हाँ, ओके सो कहाँ पे थे हम? ओके तो मैंने बता दिया कि 0.1% जो डिफरेंट होगा न्यूक्लियोटाइड दैट विल मेक द डिफरेंस इन दैट विल गिव यू एन यूनिक पर्सनालिटी ठीक है The functions are unknown for over 50% of discovered genes. 50% genes जो है उसके functions ही unknown है अभी. Less than 2% of genome codes for protein. ये भी important है बस इसे ना पढ़ लेना दो तीन बार आप पढ़ लोगे ना तो फिर आप लोगों के लिए ना easy रहेगा memorize करने में ठीक है repeated sequence make up large number of proteins a portion of human genome repetitive sequences are stretch of DNA sequence that are repeated many times sometimes 100 to 1000 times they are thought to have no direct coding function but they shed light on chromosome structure dynamic and evolution ये छोड़ दो ये आगे आपका important point जिससे आएगा आपका question and that is chromosome 1 जो है उसके मोस्ट जीन है कितने 2968 एंड क्रोमोसोम वाई के फ्यूएस्ट जीन है कितने 231 ओके दिस इज इम्पोर्टेंट इसे प्लीज 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 याद रखना है आपको फिर साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड अबाउट 1.4 मिलियन लोकेशन ऑफ सिंगल बेस डीएनए डिफरेंसेस SNP single nucleotide polymorphism. Okay, the information promises to revolutionize the process of finding chromosome location. अब क्या है इसका जो वो था point was to find chromosomal location for diseases associated sequence and tracing of human history. Now, application and future challenges. Deriving meaningful knowledge for DNA sequence will define research through coming decades, leading to understanding of biological system. The enormous task will require the expertise and creativity of 10,000 scientists ये भी ना आप लोग ना पढ़ो वैसे मैं बता देती हूँ एक बार पढ़ के एचजी सीक्वेंस में will be enabling the radical new approaches of biological researches in the past researchers studied of or one of few genes at a time with the whole human genome sequence and new high throughput technologies we have approaches questions and borders they can study the gene of genome for example all the transcript in the particular tissue or organism or tumor this was important कि particular tissue और organism और tumor के बारे में study किया है now हमें अब देख लो यहाँ पर मैंने थोड़े से क्वेश्चन लिखे हुए हैं इसके वन तो आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन लाइज इन डीएनए ठीक है कॉस्ट ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट फॉर 9 बिलियन बेस पेयर्स ठीक है अब 3 × 10⁻⁻1000 बुक्स बनानी है 1000 पेजेस हो जाएंगे 3300 वर्ड्स हो जाएंगे हर पेजेस में ये सब छोड़ दो फ्रेडरिक सैंगर ने दो काम करे थे वो आपको याद रखने हैं ठीक है एक हो गया आपका अमीनो एसिड्स एंड दूसरा हो गया आपका डीएनए का प्रिंसिपल दिया था उन्होंने कि कैसे सीक्वेंस होता है देन क्रोमोसोम 1 आपका मई 2006 में हो गया था 22 ऑटोसोम 16 क्रोमोसोम हो गए सेलियन फीचर्स में आपको क्या क्या याद करना है मैं आपको एक बार वापस बता देती हूँ एंड इसको एज इट इज याद करोगे आप कितने बेस पेयर्स थे एक पॉइंट ये दूसरा ओहो डाइसोट्रोफिन के कितने बेसिस है और लार्जेस्ट ह्यूमन जीन कौन सा है देन योर 50% ऑफ जीन तो किसी चीज के लिए कोड ही नहीं करते फिर लेस देन 2% कोड्स फॉर प्रोटीन्स
फिर आ गया मोस्ट इम्पोर्टेंट कि सबसे ज्यादा जीन्स कौन से वाले उसके पास है, क्रोमोसोम के पास वन के पास कितने 2968, और फ्यूएस किसके पास है, वाई के पास कितने 231। ओके, अब आ जाओ आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे। स्टार्ट करिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत आसान है एंड बहुत बढ़िया सा है, मतलब मजा आएगा आपको पढ़ के। ओके, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बेसिकली क्या होता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज बेसिकली अ पेरेंटल टेस्ट की जनरली जब कोई As you started in the preceding section, 99% तो देखो सबके सेम है, आपका सेम है, मेरे से 99%, एक्स वाई पर्सन से भी सबका सेम है 99%, बट द 0.1% मेक्स द डिफरेंस एंड मेक यू यूनिक। ठीक है, assuming human genome as 3 into 10 to the power 9 base pairs is how many base pair sequences would they be different? If there is a difference in sequence of DNA which makes every individual unique in every देखो क्या कहा था मैंने कि there is in the DNA sequences which makes every individual unique in their phenotypic appearance. If one aim to find out genetic differences between two individuals or among the individual of population, sequencing of DNA every time would be अब देखो कितना एक्सपेंसिव टास्क हो जाएगा ना अगर हम पूरा डीएनए सीक्वेंस करेंगे, कि पूरा डीएनए सीक्वेंस करते हैं फिर मैच करते हैं। तो इसके लिए क्या किया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज अ वेरी क्विक वे टू कंपेयर डीएनए सीक्वेंस ऑफ एनी टू ऑर्गेनिज्म। अब क्या किया कि जो आपका डीएनए है ना, क्या, तो आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या होगा कि बहुत क्विक सा वे कि आप एक पर्सन ए एंड बी के दोनों के डीएनए देख के कंपेयर करके बता सकते हो कि मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग डिफरेंस इन सम स्पेसिफिक सीक्वेंसेस। अब क्या है आपका, ये देखो। ओके, तो DNA sequence fingerprinting involve identifying of difference in some specific region of DNA sequence। अब उन specific regions को क्या कहते हैं, repetitive DNA। Small strand of DNA is repeated many times. These repetitive DNA are separated from bulk genomic DNA। बल्क जीनोमिक से इन रेपिटेटिव सीक्वेंस को सेपरेट कर लेते हैं, देन दे आर सेंट्रीफ्यूज द bulk DNA from from the bulk DNA will form a major peak and all the small DNA will form satellite C। ये हो गया आपका रेपिटेटिव डीएनए। एक हो गया आपका बल्क, बल्क ने क्या फॉर्म कर दिया, मेजर पीक, और स्मॉल विल फॉर्म सैटेलाइट डीएनए। ठीक है, depending on the base composition, length of segments, and number of repetitive sequence, the satellite DNA is classified into many categories। अब आपका ये वाला सैटेलाइट डीएनए भी दो कैटेगरीज में कैटेगराइज हो गया, माइक्रो सैटेलाइट एंड मिनी सैटेलाइट। ठीक है, these sequences normally do not code। अब ये कोड तो किसी भी प्रोटीन के लिए नहीं करते, but they form a large portion of human genome। But what they form is large portion of human genome। These sequence shows high degree of polymorphism। High degree of what? Polymorphism is shown and form a basic DNA fingerprinting since DNA from every tissue। अब आप डीएनए निकाल किसके से सकते हैं, ब्लड से, हेयर फॉलिकल से, स्किन से, बोन से, सलाइवा से एंड स्पर्म से। रिमेम्बर कुछ कुछ मूवीज में दिखाते हैं कि एक कॉम में उनका हेयर मिल गया एंड दे जस्ट गेट द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डन। हेयर से, रिमेम्बर याद रखना है, ये हेयर से, ब्लड से, स्किन से, बोन से एंड सलाइवा एंड स्पर्म। ठीक है, from an individual show the same degree of polymorphism, they become a very useful identification tool in forensic application।
Further, as the polymorphisms are inheritable from parents to children's children, ठीक है? DNA fingerprinting is a basic parentage test in case of dispute. Disputes में parentage test होता है ये. अब आ गया हमारा टर्म पॉलीमॉर्फिज्म. पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब समझते हैं पहले. पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली क्या होता है? वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल. थोड़ी थोड़ी वेरिएशन. रिमेम्बर कि एक रिमेम्बर म्यूटेशन क्या था? स्मॉल चेंजेस. Polymorphism is a basically variation and changes in genetic level. ठीक है? As polymorphism in DNA sequence is the basic of genetic mapping. Basic है ये genetic mapping का human genome में as well as DNA fingerprinting में. It is essential that we understand what DNA polymorphism means in simple term. अब polymorphism है क्या? Polymorphism क्या है आपका? Variation at genetic level. अब अराइज कैसे, अब होता कैसे है पॉलीमॉर्फिज्म, ये भी तो पता होना चाहिए ना. कैसे होता है? म्यूटेशन से होता है. एंड रिमेम्बर म्यूटेशन किसमें हमने पढ़ा था? म्यूटेशन कब होगी? जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा. ठीक है? Studied kind of mutation and their effects that you have already studied in chapter number 4 and in the preceding section in the chapter. New mutation may arise in an individual either by stomatic cell, या तो भाई तुम्हारे stomatic cell से हो जाएगा, somatic cell से सॉरी, नहीं तो किससे होगा? germ cell से. germ cell से कैसे होगा? generated gamete in sexually reproducing animals. किससे हो रहा है? sexually reproducing animals से. In a germ cell, mutation does not seriously impairs individual ability to have offspring who can transmit mutation. It can be spread to other members population through sexual reproduction. ठीक है? Allelic again, recall the definition of allele in chapter number 4, sequence variation and traditional being described in DNA polymorphism. If more than one variant allele at locus occurs in human population with a frequency of greater than 0.01. In simple terms, inheritable mutation is observed in population at high frequency. आप किसमें ऑब्जर्व कर सकते हो? आप सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी में कर सकते हो. और इसको क्या नाम दे दिया? डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म. ठीक है? The probability of such variation to be observed in non-coding DNA sequence would be higher. Mutation in these sequence may not have immediate impact on individuals. These mutation keeps an accumulating generation. अब generation to generation के बाद ही शो करता है. जनरली एक जनरेशन में ये चीजें शो नहीं करती. ठीक है? अब आ जाओ आप इस पे. एक और साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना है. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दी किसने थी? किसने दी थी? एलेक जेफरी सर ने दी थी. नाम लिख लो क्योंकि ये याद रखना है. क्यों? क्योंकि पीवाईक्यू आया था. ठीक है? He used the satellite DNA probe that shows high degree of polymorphism. अब इसको क्या कहा? It was called as VNTR, variable number tandem repeats. ठीक है? द टेक्निक, ये भी आप तीन चार बार बोलते रहोगे ना तो आपको याद हो जाएगा. अब आ गई भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जिसमें से क्वेश्चन आता है कि भाई डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती कैसे है? वीएनटीआर कैसे होता है? तो अब आ जाओ वीएनटीआर पढ़ लेते हैं एक बार. फर्स्ट आप क्या करोगे? आपको एक डीएनए चाहिए. डीएनए को फर्स्ट आप आइसोलेट करोगे. देन डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. पहले तो हो गया आपका आइसोलेशन, फिर हो गया आपका डाइजेशन. अब आप सेपरेट करोगे उस डीएनए को. कैसे सेपरेट करोगे? एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होगी कि जो बड़े बड़े पार्ट्स होंगे वो पीछे रह जाएंगे और छोटे छोटे पार्ट्स जो होंगे वो आगे चले जाएंगे. ठीक है? आइसोलेशन कर लिया, डाइजेशन कर लिया, सेपरेशन कर लिया. आप क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे उसे. ट्रांसफर करेंगे डीएनए के फ्रेगमेंट्स को
देन होगा आपका हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन किस कैसे होगा, लेबल कर देंगे उसको VNTR प्रोब्स के उससे। देन आपका डिटेक्शन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय ऑटो ऑटो रेडियोग्राफी। देन हो गया आपका डिटेक्शन। ये 6 पॉइंट्स आपको एज इट इज याद करने हैं। फर्स्ट हो गया आइसोलेशन, देन हो गया डाइजेशन, फिर सेपरेशन ऑफ बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, देन आपका आ गया हाइब्रिडाइजेशन, देन डिटेक्शन बाय ऑटो रेडियोग्राफी। ठीक है, प्लीज 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 याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, फिर आगे आपका यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा कि एक बात बताओ, जस्ट थिंक कि आपका, मेरा, इसका, उसका, मतलब बहुत सारे लोगों का 99% डीएनए तो सेम है। ठीक है, बट 0.1% अलग है, जिससे आप और मैं अलग हो जाते हैं, हमारे फेसेस अलग हो जाते हैं, हमारी हाइट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जेनेटिक मटेरियल पूरा डिफरेंट हो जाता है। बट हैव यू एवर थिंक कि यार, क्या दो लोगों का डीएनए सेम हो सकता है? थिंक। यस, इसका आंसर है यस, दो लोगों का डीएनए सेम हो सकता है, बट किसका डीएनए आइडेंटिकल होगा? आइडेंटिकल ट्विंस का डीएनए आइडेंटिकल होगा। अब क्यों होगा? क्योंकि देखो, हम कैसे बनते हैं, एक एग से बनते हैं, एंड आइडेंटिकल ट्विन में क्या होता है, यही एग सेग्रीगेट कर जाता है, मतलब दो में डिवाइड कर जाता है। तो डीएनए तो इसी से बन रहा है ना, तो सेम डीएनए बनेगा। अब एक और क्वेश्चन आता है कि यार, अगर चलो डीएनए तो बिल्कुल सेम है, तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये ए का है एंड दैट इज बी? The thing that is different in every organism except DNA, that is gene expression and fingerprints. फिंगरप्रिंट मेरा भी अलग है, आपका भी अलग है, आपके पेरेंट्स का भी अलग है, आपके फ्रेंड्स का भी अलग है। रिमेम्बर, आइडेंटिकल ट्विंस का डीएनए सेम हो सकता है, बट उनका जीन एक्सप्रेशन एंड फिंगरप्रिंट हमेशा अलग होगा। ठीक है, यही पढ़ लो, इस वाले पैराग्राफ में बस यही लिखा हुआ है। इन VNTR belongs a class of satellite DNA referred to a mini satellite, a small DNA sequence in arranged randomly for many copies. The copy number varies from chromosome to chromosome in individual. The number of repeat shows a very high degree. अब क्या है कि भाई, जितना रिपीट होगा उतनी ज्यादा हाई डिग्री ऑफ क्या होगा, पॉलीमॉर्फिज्म होगा। एज अ रिजल्ट की VNTR जो है ना, वो कितना वेरी कर सकता है, 0.1 टू 20 KB तक वेरी कर सकता है। अब इसको भाई देखते किससे, ऑटो रेडियोग्राम से देखते हैं। देन आगे आपको क्वेश्चन कि अगर दो लोगों में है तो किसका सेम हो सकता है, हर किसी का सेम होगा इन द डिफरेंस ऑफ इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, एक्सेप्ट in case of monozygotic identical twins. The sensitivity of techniques has been increased using PCR. PCR क्या बारे में किस में बताएंगे आपको, चैप्टर नंबर 9 बायोटेक वाले चैप्टर में पीसीआर के बारे में अच्छे से वो करा जाएगा। एंड मेरे ख्याल से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में ना एक बार और समझाई हुई है, कौन से, बायोटेक वाले चैप्टर में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर में ना आपको यही सब याद रखना है। Cellular analysis, in the addition of forensic sciences, how it has a wider application such as in determining genetic diversities. Currently, many different probes are used to generate DNA fingerprints. तो चलो, आप लोगों का चैप्टर यहाँ पर हो चुका है खत्म। Let's finally, molecular basis of inheritances is finished. I hope you enjoyed this lecture. मुझे तो पढ़ाने में बहुत मजा आया ये चैप्टर। आई होप आपको भी पढ़ने में मजा आया हो। अब ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब मैं बताती हूँ कि इसमें क्या करना है। सी, ये तो मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया, अब आप पे डिपेंड करता है कि थोड़ी सी बात कर लेता है, उसके बाद ना क्लास एंड करते हैं। ठीक है, बहुत देर की क्लास हो गई वैसे भी आज। ओके, सो फाइनली ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब देखो, आपको समरी
एंड बैक क्वेश्चन इसके बच गए हैं। आप डिसाइड करो वो आप खुद करोगे या मेरे साथ करोगे, वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। सेकंड थिंग जो है दैट इज कि कुछ ना इसमें बीच बीच में ना पीवाईक्यूज कराए थे मैंने, तो अब वो पीवाईक्यूज करने हैं, उसकी क्लास कैसे शेड्यूल करनी है, ठीक है। बिकॉज नेक्स्ट चैप्टर इज एवोल्यूशन, जो हमारा सितंबर का मंथ प्लान बना था, उसमें नेक्स्ट चैप्टर हमारा एवोल्यूशन है। एवोल्यूशन का मैं वन शॉट कराऊंगी, वन शॉट में एवोल्यूशन खत्म, उसमें ज्यादा कुछ है भी नहीं। तो मैं आज ही उसके नोट्स प्रिपेयर कर लूंगी, होपफुली कल या परसों तक मैं एवोल्यूशन भी पूरा कंप्लीट करके डाल दूंगी। पढ़ाई करो, प्लीज फोकस ऑन, सिर्फ 7 या 8 महीने ही बचे हैं नीट के लिए। अब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में क्या करना है हमें, एक बार और नेक्स्ट मंथ हम वन शॉट करेंगे, उसके बाद हम नहीं करेंगे ये वाला चैप्टर, बस रिवाइज करते रहना आप इसको। लास्ट वाले महीने में हम इसके वन शॉट और वापस वापस रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो मेरे एंड से मॉलिक्यूलर बेसिस कंप्लीट हो चुका है, बट कोई भी दिक्कत आए, जस्ट मैसेज मी ऑन कमेंट सेक्शन, कमेंट में एक मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं वहीं से सेम आपका वो आपको जो भी डाउट होगा उसको एड्रेस कर दूंगी, ठीक है। थैंक यू। प्लीज अपना वैल्यूएबल फीडबैक मुझे प्लीज प्रोवाइड करो, ठीक है। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड।